मेरी मॉम से बात हुई, वो कह रही थी एक बार पेपर्स लॉयर्स को भी दिखा दो। Now she can sing. हाँ डूबे। खैर, डुबकी लगाने के लिए सब तैयार हो जाओ, बट उससे पहले देख लेते हैं एक इंट्रो। स्ट्रगलर्स और आउटसाइडर्स को बॉलीवुड में चांस देने वाले परम पूज्य करण जौहर की तरफ से पेश है गहराइयां, जिसमें मतलब ये गली बॉय वाले बंदे का ना लवक पता नहीं कहां से फट के बाहर आया होगा। You fucking treat me like an outsider. I mean, buddy, because you are. इतनी क्या ट्रेजेडी हो गई यहाँ लाइफ में? गहराइयां एक ऐसी मूवी है जो फ्लॉड कैरेक्टर्स के ऊपर बनाई हुई है। What the fuck is this? So you have characters like Alisha, who has childhood trauma because she watched her mother practice self-kill. You think it would get easier, right? पर कल जब हम बचपन की वीडियोस देख रहे थे, it all came back to me. His boyfriend Karan is a writer who can't write. पहले मेरी बुक पब्लिश नहीं हुई और जब हुई तो किसी ने पढ़ी। Tia, who's a struggler, obviously. Wow guys, sweet ride, huh? I doubt हम ये afford कर Karan, सकते हैं। he's just kidding, guys. No, this one's on us. And finally Zen, who has an important call to take. Just give me a second. I need to take a. सबसे मिल तो लो। No, I need to make a call. Good. I'm sorry, I need to take this call. Please. Alisha, Karan and Tia बचपन से साथ में हैं and they were close since Alisha and Tia are cousins. Karan and Alisha are dating and Tia and Karan are BFFs. दोनों यूएस में साथ पढ़ रहे थे और मैं यहाँ थी तो मतलब वो दोनों यूएस में थे तो तूने बंदा पटा लिया। Very believable. बेसिकली मैं अपनी कजिन को अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू जानती हूँ। Alisha is a yoga instructor and since उसने इस साल शार्क टैंक देखा था तो she is working on an app जिसमें इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। So say for example he takes this posture, it will show you a green line which means posture सही है. Say I move this way, the app will detect that the posture is incorrect. Red line आ जाए. Oh, okay. ये मस्त ग्लिच है। इस ग्लिच से पूरी डिस्प्ले ही टूट जाती है। You know ये glitch मैं fix कर सकती हूँ. 7-8 लाख ऑलरेडी लगा चुकी हूँ ऐप पे। 6-7 लाख लगा दिए? भाई बेवकूफ हो, सीधे ब्लैक हैट जूनियर से क्लास ले लेते। Waste of money. He's just kidding, guys. Anyway, Tia is back to India and they meet at a yacht. इसी मूवी में मुझे पता चला कि इसको yacht बोलते हैं, नहीं तो मैं हमेशा याच करता रहता था। एंड एक ही बार में अपनी योग्यता का प्रमाण देने के पश्चात नर भालू मादा की ओर आकर्षित होकर प्रजनन की इच्छा जाहिर करता है। Nice. Are you flirting with me? And after Zan shows her his big property, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है. All of that. रियल एस्टेट बिजनेस में है वो गंदे दिमाग वालों। Fuck, you're rich. Nice. तो अब क्या? Situations happen and things lead to प्रजनन and stuff. I promise I won't flirt. Zen invests in her app and then does Prajanan. Karan proposes to Alisha and no Prajanan. But then Alisha breaks up and then does Prajanan. Zen does some evaluation jhol for a loan. Then does Prajanan. Company के घोड़े लगते हैं and then no Prajanan. Because of the jhol, her yoga studio shuts down. Zen and Alisha fight. Fucking paranoid, you are fucking, you bloody bastard bitch. And this keeps on happening while Tia is struggling to have any relevance or Prajanan in the movie. सोच रही हूँ pottery classes शुरू करूँ। Alisha is actually that person who has issues with life, who's actually trying to win at life every day, seeing others win. I'm not good at staying in touch. She doesn't want to end up like her mom, whom she saw married to a man she didn't love, and in the end, she hung herself, which gave her a lifelong trauma. Fuck you, yeah. And she feels little envious of her cousin Tia, who moved to US, and the first thing she does when she returns is bang her fiance. शाबाश बेटा। I mean, जहाँ पे थोड़ा सा you try to understand this character, वहीं पे पूरा U-turn ले लेती है ये। After she breaks up with Karan, she gets even more involved with Zain, and she doesn't give a fuck कि they are in a secret relationship. ये बंदी उसके ऑफिस पहुंच जाती है, बीच में she gets pregnant, तो डॉक्टर के पास भी इसको साथ ही जाना है। अरे मतलब खुद ही चीट कर रहे हो और खुद ही Control. पहले अपने बंदे से ब्रेकअप कर लिया कि चलो यू आर नॉट हैप्पी देयर, उसके बाद अपनी बहन के बंदे को डेट करना है, फिर परेशान भी रहना है, फिर लड़ना भी है, फिर ब्लैकमेल भी करना है। अरे भाई छोड़ दो ना, जब पता है कि ऑलरेडी यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। लेकिन नहीं,
माई चॉइस बोल के करो चुतिया पे। My choice. जैन इज द मोस्ट फक्ड अप कैरेक्टर इन दिस मूवी। इसको भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसके डैड ने मुझे ये दिया, स्पेशल प्राइस फॉर केयरिंग। एंड हिज कैरेक्टर आर जस्ट गोस फ्रॉम बैड टू वर्स। हे, क्यों आए हो तुम? पहले तो अपनी फियांसे की बहन पे लाइन मारना और फिर अलीशा, टिया और अपने बिजनेस तीनों के साथ प्रजनन करना। एहसान मत करो मुझ पे यार। He is a real estate businessman who has a yacht. मतलब इस मूवी में माँ कसम इन्होंने यॉट का रेंट ऐसा वसूल किया है ना, हर दूसरे सीन में किसी ना किसी बहाने ये लोग यॉट पे पहुंच जाते हैं। What? And he's supposed to be a good businessman and I don't understand how. इसके बिजनेस में मेजर फंड्स दिए हैं टिया के बाप ने, बाकी ही रेज फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स, और उसके बाद जब इसको सही लोन नहीं मिलता है तो इलीगल काम करके लोन ले लेता है और उसके बाद 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी का कहना है कि विजय सेन ने गैर कानूनी तरीके से रियल एस्टेट कंपनीज को बैड लोन्स दिए थे। and later he tries to raise some more funds. But ट्रॉपिकल रियल्टी ऑब्वियसली और इन्वेस्ट नहीं करेगा तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में, और अब तक का सारा इन्वेस्टमेंट हमें वापस चाहिए 2 weeks एज पर कॉन्ट्रैक्ट और वी सू यू। इतना बोलने की क्या जरूरत थी? You could have just said. ये सब दोगलापन है। And in the end, जब अलीशा इसकी ढंग से मार लेती है over not leaving Tia, तो he decides to. Well, that escalated quickly. But. Fight back, nigga. Fight back, nigga. Thanks to all yoga. And cue music. Hondu Bay. Tia struggles to make sense out of every situation. मतलब she's that person who sees the best in every person and trusts anybody easily. कुछ हुआ क्या? She is engaged to Zain and is his business partner because पैसा बहुत है। and उसको शक है कि यार बंदा मेरा इतना बिजी कहाँ रहता है। Are you having an affair? Who the fuck is contractor? तुम्हारे फोन पे उस नंबर से इतने कॉल्स क्यों आते हैं? रात के 3 बजे कॉल आते हैं उसके। हाँ, हाँ, because I work in the fucking night. FaceTime calls, video calls. I'm not a fucking child, Zain. हाँ जैन भाई बोलो। दो लौंडियों को घुमा रहा है, वो भी बहने। I mean दिमाग तो होगा ही इसमें, तो नाम तो वो पहले ही चेंज कर चुका था। बड़ा हरामी हो बेटा। And later in the movie, she tells her कि why her family went to US and Alisha's family didn't. It was because. My dad and your mom were having an affair. So basically, her mom was cheating, and then that is why they separated. And after a while, she hung herself. खानदानी चीटर हैं ये लोग। बहन का बंदा, पति का भाई आसपास में ही चीट कर लेते हैं, दूर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। Karan is a very important character in this movie and has so much of screen time कि चुम्मा चाटी के सीन्स को अगर ऐड कर दो तो भी भैया जी का स्क्रीन टाइम उसका आधा ही रहेगा। मतलब ये बंदा पूरी मूवी में एक नॉवेल लिख रहा होता है जो कि मूवी के एंड में जाके खत्म होती है। पहले मेरी बुक पब्लिश नहीं हुई और जब हुई तो किसी ने पढ़ी। इसी मूवी का स्टोरी लिख रहा होगा और क्या। खैर ही इज द ओनली वन हु एक्चुअली गेट्स अ हैप्पी एंडिंग। fuck you're rich. फक क्या फक करते रहता है। You fucking treat me like an outsider. इस मूवी का सिंपल सोल्यूशन यही है कि इतना भी स्ट्रगल मत करो कि आप ही का बंदा आप ही की बहन के साथ कौन से नोयों में नईयो कर रहा है आप ही को ना पता हो। That's a good one. याद रखें, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। बेसिकली ये मूवी हाँ बोरिंग है, मेरे टाइप की भी नहीं है और मैं इसको दोबारा कभी नहीं देखने वाला। बट जो मैंने एक हेट वेव देखा है ना इस मूवी के अगेंस्ट, वो मतलब लाइक बॉयकॉट और ये सब बहुत अजीब लगता है। मुझे एक चीज कभी समझ में नहीं आती कि जब कोई बोलता है ना अबे ये मूवी तो क्यों देख रहा है, ये तो बेकार है। तूने देखी है? नहीं मतलब मुझे पता है बेकार है। जब तूने देखी नहीं तो तुझे कैसे पता है? मतलब fuck you. तो आई जस्ट वांट टू से कि मूवी में स्टोरी है, हाँ है। यही मूवी अगर हॉलीवुड में बनी होती तो हर जगह ट्रेंड हो रही होती। बट ये मूवी इज ओके, नॉट गुड, नॉट बैड। Maybe a little bit. And if you want to say कि this movie promotes cheating and all those things, तो one of the classics सिलसिला वो भी मूवी चीटिंग पे ही थी। तो it's a story, उसको स्टोरी की तरह ही लें तो सही रहेगा। Yes you will do it. Can't do it, please. खैर इस वीडियो के लिए इतना ही था। इफ ये वीडियो पसंद आया तो इस पे खूब सारा लाइक शेयर और कमेंट कर दो यार। एंड पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो बिकॉज अंडी मंडी संडी इफ ये सब नहीं किया तो
After falling into the sea, Zan shows no signs of struggle. मतलब वो पानी में गिरते ही dead हो जाता है. I mean, Han Dubé Bahansho.